आपके इस इतना सुंदर महफिल के बाद अब हम लोग आ रहे हैं HIV और एडोलेसेंट की तरफ। एक छोटी सी मेरी कविता से मैं शुरू कर रही हूँ आज का हमारा वेबिनार। मेरे देश ने पहन लिया ये कैसा वेश, चलो अपनी संस्कृति से नवीन देश बनाए जो रह गया अवशेष। बच्चों को पकड़ा दिया एक ऐसा यंत्र जिसमें उलझ कर खो गया उनका जीवन, भर दिया है पॉर्न का उनमें क्रेज। मेरे देश ने पहन लिया ये कैसा वेश, नन्हे किशोरों से होता है देश का निर्माण, चलो उन्हें दिखाएं क्या है जीवन की ढाल। सेक्स शब्द से टैबू हटाना है, सही क्या है गलत क्या है उन्हें सिखाना है। चलिए नया देश बनाना है, चलिए नया देश बनाना है। Welcome, respected ma'am and dear friends. Welcome to this important webinar on HIV and adolescence. Adolescence is a time when the person is trying to find an identity, a time of biological changes, emotional changes, of sexual development. This is the time when the teenager steps out of parental protection and seeks gyan from friends and may experiment with things which are taboo. Nowadays, sex has become a common word amongst the teenagers. As gynecologists, we are seeing a rise in adolescents seeking help for unwanted pregnancies, for STDs, for vaginitis. One of the main concerns is HIV in the adolescent, which is going to be taken up by our own expert, HIV expert, Dr. Ruby Bansal. I believe that sex education should be a part of our conversation with all adolescents who visit our clinics for various problems like PCOS, for obesity, abnormal uterine bleeding, vaccinations, etc. We have to break the ice. We have to get them to talk. And now I would request Dr. Sharda Jain ma'am to guide us, to enlighten us on her aspect on adolescence and HIV. Topic is very important as far as HIV is concerned in relation to adolescent. I'm remembering my days when the पागलों की तरह हम adolescent health की workshop किया करते थे. This was the peak time when the HIV was at its peak. As far as this country is concerned, there has been a significant drop in HIV cases. Kudos to the work of the government of India. The drop in the HIV cases has been to the tune of 85%. I remember very well when we used to go for workshop, we used to say that new AIDS cases, I'm talking about 90s, 95, 96, that's the time. We used to say the new cases up to the age 25 of AIDS cases were 50% at that time. It means from HIV to AIDS, it takes 10 years. It means the exposure had been there in adolescent time. We've come a long way in the last 20, 22 years. Now, if today 15 to 25 make 25% population of this country, 20 years back, it was 50% AIDS, new AIDS cases were there in this group, 15 to 25 cases. Now the latest figure of 2017 are with us, it says it is 31%. From 50%, there has been drop of 20%. And I think, you know, the strategy in the school, in the colleges are working well, but I think still the work is only 10%. We have to see to it that our vulnerable people, that is adolescent, should be protected very well. Now here I wish to just tell you a couple of things. Dr. Ruby is going to highlight many things. Adolescents
Adolescents are not hijras. Adolescents are not, male having sex with male. These are the people who are caught in the houses. These are the very people who are caught in the schools. These are the very people who are caught by the teachers. And we have to see that the parents have to be alert, awake, and see that these vulnerable are taken care of. मेरा अपना सोचने का तरीका है कि भाषण में कुछ नहीं होगा जब तक आप इस बच्चे को बताएंगे नहीं कि कौन आपको तरफ एडवांस कर रहा है, उसकी क्या बातें होती हैं, किस तरह से अपने को प्रोटेक्ट करना है, उसको ये स्किल्स सिखानी पड़ेंगी और बिना स्किल्स के कुछ नहीं होगा. Once you're caught, you're gone. Those skills are very important, and that skill cannot come from short of adolescent health workshop, one-to-one. Those experts have to teach the negotiation skills. उसको पता होना चाहिए कि इससे मेरा ये नुकसान होने वाला है. I remember very well. Class 5, we used to take a class where the mixed population used to be there. A girl who's studying in 5th class is also there. The girl who's studying in 10th class is also there. The boys of the 10th class are also there. And we asked her, the most alert and the most vocal was class 5 girl. She doesn't have inhibitions. That is the girl who you have to take care. That age boys you have to protect. Because exposure यहाँ हुआ तो AIDS 10 साल के बाद होगा. And the days are gone now. That HIV people used to get scared about it. I think, with experts around, you can lead a normal life. That is what we want. The confidence should come in among every gynecologist, every doctor, every parent. कि जब संभल जाए उतना अच्छा है. So over to you, Divya, with these remarks. Thank you so much, ma'am. Thank you for guiding us. And now I'd like to request Dr. Jyoti Agarwal to give us some pearls of wisdom. Dr. Jyoti Agarwal, ma'am. Yes, please. A very good afternoon to all of you. You can hear me? Before we request Dr. Ruby to discuss about adolescence and HIV, I would like to recapitulate some salient points of HIV-2, which she discussed beautifully last time. Beautifully, she showed us a case of vulvovaginitis, highlighting the importance of ruling out STDs and HIV in these young unmarried adolescent girls. And fortunately or unfortunately, she turned out to be HIV-2. But what we here want to know is there is an entity like HIV-2, and we should get both the tests done. The big labs like Lals and Metropolis, they do both HIV-1 and HIV-2. And in case they are not doing HIV-2, we should request them to get the HIV-2 also done. The prevalence of HIV-2 is very small. Majority, almost 95 to 96% of the patients belong to HIV-1 category. Another 2 to 3% belong to HIV-2. But again, there is a category of 2 to 3% who can have both HIV-1 plus HIV-2. The prevalence is small, but nevertheless, it is there in India also. And the viral load is also less with HIV-2. Unfortunately, one important thing is the vertical transmission from mother to the baby is almost zero to negligible with HIV-2. But the important thing is the treatment part is different of both HIV-1 and HIV-2. HIV-2 patients need a second-line treatment consisting of 4 drugs, for which Dr. Ruby is already here to guide us and help us out. And before she takes up adolescence, I would like to request my friends that this is an opportunity not only to screen these young girls for STD and HIV in today's scenario, but also to promote cervical cancer vaccination in this age group. Over to Dr. Ruby now. I request Dr. Ruby to please highlight HIV in adolescent girls. Dr. Ruby? Say something. Dr. Archana Pathak. And all of us must remember that in North, the incidence is 1 in 100.
In 10 states, the incidence is around 2%. That is in 100. Yes, Dr. There are male are more affected than females. And the females get only gift from the male. Yes, Dr. Ruby? Yeah, I already brief किया है adolescents पर, and I also remember मेरी जर्नी भी मैडम के साथ ही, मतलब मैम की वजह से ही स्टार्ट हुई थी adolescent की. When I used to go with ma'am for this adolescent workshop. और यही जो है मेरा, मतलब वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था और मैं एडोलेसेंट में काफी काम किया उसके बाद. सो एडोलेसेंट्स एंड एचआईवी एक टोटली बहुत सारी चीजें हैं जो एडोलेसेंट्स के साथ हैं. एडोलेसेंट इज ए एज जहां पर कि इन लोगों को बहुत ही पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म, स्ट्राइफ, जिसको कहते हैं ना, मतलब एक डिफरेंट, बच्चे से जब बड़ा होने शुरू होता है तो टोटली एक डिफरेंट आउटलुक शुरू हो जाता है. एक डिफरेंट, बच्चे घर में बात नहीं मानते हैं या सुनते नहीं, उनको लगता है बड़े हो गए हैं, अब ना तो बड़े हो पाते हैं ना छोटे रह पाते हैं, और मम्मी के पल्लुओं से निकलकर वो जो है बाहर अपनी दुनिया ढूंढते हैं, जहाँ की जो लोगों के पीयर प्रेशर में, बच्चों के साथ में, तो वहीं पर जो है बहुत सारी चीजें एडोलेसेंट जो है अडॉप्ट कर लेते हैं. तो दैट इज द प्रॉब्लम. एडोलेसेंट के साथ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जब से एचआईवी एड्स आया, सिंस एचआईवी एड्स केम, so देखा गया कि like there are lot of people, lot of young generation who is getting this infection. So वहीं से जो है इस पर और ज्यादा काम शुरू हुआ. Although adolescents के अपने problems काफी सारे थे, तो just a brief कि current update जो है 2020 का क्या है HIV पर. So now मैडम ने already कहा कि हम definitely it's dropping, infections are dropping, and जो एक हमारा 90 का टारगेट जो वर्ल्ड ने लिया है, 90 का टारगेट का मतलब है कि 90% ऑफ द पीपल शुड नो देयर स्टेटस ऑफ एचआईवी. मींस की टेस्टिंग इतनी होनी चाहिए कि 90% लोगों को पता हो कि उनको एचआईवी है. 90% ऑफ पीपल शुड बी ऑन एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट. जितने भी लोग हैं उसमें से 90% जो है ट्रीटमेंट पर आ जाएं, और 90% ऑफ दी पीपल जो ट्रीटमेंट पर है उनका वायरल लोड सप्रेस हो. मतलब वायरल लोड अगर सप्रेस होगा तो वो आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे और डेथ रेट कम हो जाएगा. तो ये जो है टारगेट है जो 2020 में ही अचीव करना था, और 2030 तक इसको अब वो मिला है, परंतु कोरोना की वजह से शायद हम लोग काफी अभी लेग बिहाइंड कर रहे हैं और अदर कारणों की वजह से. तो जो करंट अपडेट है, अभी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे था, उसी पर ये अपडेट भी निकला था कि 38 मिलियन पीपल जो अभी ग्लोबली हैं वो एचआईवी एड्स से ग्रसित हैं, जिसमें से कि 2019 में सिर्फ 1.7 मिलियन न्यू इन्फेक्शन आए हैं, जो कि 2030 तक टारगेट है कि न्यू इन्फेक्शन जो है 90% तक बंद हो जाने चाहिए. और 6,90,000 जो लोग हैं वो 2019 में जिनकी डेथ हुई है ड्यू टू एड्स रिलेटेड इलनेस, मतलब किसी ना किसी वजह से एड्स के कारण जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई थी वो उनकी डेथ हुई है. 26 मिलियन पीपल वर जिनको की एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट शुरू हो गया है. मतलब अभी भी अगर हम बात कर रहे हैं कि 38 मिलियन, तो 12 मिलियन अभी भी हैं जो कि एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट पर नहीं है. तो यही टारगेट को अचीव करना है. और 32.7 मिलियन लोगों की डेथ हो गई है सिंस द स्टार्ट ऑफ द एपिडेमिक. जब से कि एपिडेमिक स्टार्ट हुई है, मतलब अप्रोक्सीमेट 84 से, और अब तक जो है करीब 33 मिलियन लोग जो है एचआईवी की वजह से इनकी डेथ हो गई है. सो यूथ इन इंडिया, मैम ने ऑलरेडी बता दिया है ये कि इन इंडिया में जो एज ग्रुप 15 से 29 का है, अप्रोक्सीमेटली 25% पॉपुलेशन हमारे पास जो है इस एज ग्रुप की है, और पर वही जो है 31% आउट ऑफ देम इज हैविंग द एड्स बर्डन, जो कि डेफिनेटली मैम ने सही कहा कि अप्रोक्सीमेट 45 to 49% था कुछ समय पहले, 2010 की बात करें, परंतु अभी भी 31% आर द यूथ हु इज हैविंग द एचआईवी एड्स. तो एचआईवी पॉजिटिव एडोलेसेंट अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 बच्चे एडोलेसेंट एज ग्रुप के, जिसको कि हम जो अप टू द 0 to 19 जो एचआईवी के साथ है इंडिया में 2017 का फिगर है. ये हाईएस्ट नंबर इन द साउथ एशिया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय यूनिसेफ. यूनिसेफ का ये भी दावा है कि अराउंड 80 एडोलेसेंट्स विल बी डाइंग ऑफ द एड्स रिलेटेड इलनेस ग्लोबली बाय 2030 अगर हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया.
सो दैट इज द वर्ड. और अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड भी जो हम बात कर रहे हैं कि HIV ट्रांसमिशन तो जरूर कम हो रहा है, परंतु ये जो देखा गया है कि HIV ट्रांसमिशन जो है यंग पॉपुलेशन में अभी भी इंक्रीज कर रहा है. मीन्स कि जो नए केसेस हैं वो यंग में ज्यादा मिल रहे हैं एज कंपेयर टू द ओल्ड पॉपुलेशन. सो व्हाट मेक्स द यूथ वल्नरेबल? Physiologically, young people are the most vulnerable to sexually transmitted infections. मेरी आवाज आ रही है ना मैम? मुझे कुछ हेलो? Yes, please go ahead, Dr. Ruby. बढ़िया आवाज आ रही है. ओके मैम. हाँ, बीच में मुझे लगता है पता चली. अगर हम देखें तो young people are the most vulnerable to sexually transmitted infection than the adults. That we all know. You all are the gynecologists, so you know कि जब तक हम लोगों के जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर नहीं हो जाते हैं, सो देन द ट्रांसमिशन रेट डेफिनेटली हाई, इंजरी के चांसेस हाई होते हैं, इम्प्रॉपर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स जो होता है उसकी वजह से, और जो भी दूसरे कारण है कि ऑर्गन फुली मैच्योर नहीं होते तो उसकी वजह से भी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का रेट हाई होता है. देन बॉयज, due to the basically because due to the anatomical difference in the structure, so that's why the girls got easily sexually transmitted infection than the boys. And another reason is gender imbalance, social norm. Can't hear you. Hello. मैम ने राइटली प्रॉब्लम आनी ही आनी है, एंड द प्रॉब्लम सभी के एडोलेसेंट्स बच्चे, काफी लोगों के एडोलेसेंट एज पार कर चुके हैं, मेरे बच्चे अभी एडोलेसेंट एज ग्रुप में हैं. सो ये हम सभी की ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों से फ्रेंडली बात करें और उनको ये नॉलेज दें. So almost 73% of the young people have misconception about the mode of the HIV transmission. ये young पॉपुलेशन की बात है, अभी तक नहीं पता उन्हें कि क्या होता है एक्चुअली HIV ट्रांसमिशन, क्योंकि हम लोग सेक्स की बात ही नहीं करते हैं. तो HIV बहुत दूर की बात होगी, तो डिजीज है जिसके साथ और भी बड़ा टैबू जुड़ा हुआ है, सेक्स से भी ज्यादा, क्योंकि डर भी इसके साथ, सेक्स का टैबू है बट इसके साथ तो फियर भी जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग बात ही नहीं करते. टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट इन एन एनवायरनमेंट व्हिच मेक्स डिस्कसिंग दिस इशू सेक्सुअलिटी टैबू, मैं ऑलरेडी बताया. तो ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है. कॉजेज ऑफ HIV इन एडोलेसेंट, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? One of the biggest cause can be the sexual abuse, जो कि बहुत ही कॉमन है. मेरे पास स्लाइड भी है कि क्या कहती है कि कितने बच्चे पर उसमें है. सेक्स एक्सपेरिमेंट, एडोलेसेंट जो है आजकल सेक्स एक तरह का, मैंने कहीं अपनी एक बार एक आर्टिकल भी लिखा था, सेक्स इज ए न्यू कोक. सो दैट इज व्हाट, जैसे कुछ समय पहले एक कोक को लोग समझते थे कि बड़ा अच्छा, मतलब हमें ये कोल्ड ड्रिंक पीना है, हम लोगों ने जैसे बचपन में नहीं पिया, परंतु आजकल की जब कोक का इंट्रोडक्शन हुआ था तो सब लोगों को लगता था कि अगर मेरे पास कोक है तो आई लुक वेरी कूल. सो दैट इज द प्रॉब्लम. एंड अभी जो है सेक्स इज बिकम ए न्यू कोक, मीन्स कि लोगों को लगता है, पीयर प्रेशर ऐसा है कि अरे तुमने किसी के साथ अभी तक सेक्स नहीं किया, या यू डोंट हैव एक्सपेरिमेंटेड इट, सो यू आर नॉट ए कूल. So that is which is bringing this disease more prevalent in the young population. Multiple sex partner, that is again a fashion, that is again a habit which is becoming more and more because of this all the different culture. We are thinking we are going into the Western culture, but this is a problem. IV drugs, इंट्रावीनस ड्रग्स जो लेते हैं, और इन ग्रुप्स में इंट्रावीनस ड्रग की मैंने जब बात की थी ट्रांसमिशन में, तो यही बात की थी कि इंट्रावीनस ड्रग से कैसे होता है. एक को भी अगर किसी चेन में HIV है तो वो आगे अगर 10 लोग उसी इंजेक्शन से ले रहे हैं तो सबको हो जाएगा. मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, डेफिनेटली HIV ART आ गया है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट है, तो जिससे बच्चे अब यंग एज में या 1-2 साल के नहीं मरते, अगर जल्दी पता चल जाता है. सो दे आर गेटिंग नाउ एडोलेसेंट ऑल्सो, so reach to the young age with disease. So that is another reason of the illness in the adolescent. So they are already, so experiments what adolescent like, मैंने पहले ही कहा और अभी सबको पता है. I am into this field, so I know I have a different kind of the stories of the young population. Sex, vaginal as well as the anal. हमने कभी शायद जब तक मैं HIV में नहीं आई थी, और ये पिछले 6 सालों में मैंने जो है इस चीज को बहुत ज्यादा देखा है कि पीपल आर हैविंग MSM, मैन हैविंग सेक्स, या बाइसेक्सुअलिटी इज गोइंग मोर प्रिवेलेंट. सो
anal sex is going more prevalent and they are experimenting it just for the sake of fun. It's not always ki they are gay or they have the inclination towards the this thing ki male to male, but it is some more of the time it is an experimental basis. So that is a biggest issue, biggest challenge. They feel ki it is another mode and they are finding it is a fun and they are finding it is as a ki I have done it also, so I am cool. So this is the, I mean, cool is a very well going with the adolescent. They feel like it is a cool is something, I don't know. So smoking, alcohol, drugs, definitely it's another lifestyle of the youth. Adolescent. IV drugs, which is going to be like if I am just if we are just talking about the causes. So IV drugs, tattoo, they are the causing where they can get this HIV infection. Body building, other जो experiments बच्चे करते हैं वो that is a body building, bunk school करना, bunk करके movie देखने जाना, race, I mean speed, कि speed on road, have a girlfriend नहीं है तो मैं जो है मुझे जो है लोग पसंद नहीं करेंगे, social media, cyber crime. So these are the new experiments which the adolescents like to do, and they are very much very much into the fashion, I must say. So that is, so these are the vulnerable groups. Most young people become sexually active during adolescence. So these are the groups in the absence of the right guidance, right information. So they might be having the multiple sex partner and they are going even to the commercial sex worker for the just the sake of the experimenting the sex or learning the sexual act. So they are going to the commercial sex worker where they can just get easily this HIV. Otherwise also they are into their own group, they are having this sexual activity. So another what Dr. Ruby is telling, I think, you know, it's an eye opener for all parents. I am talking about 20 years back, birthday party, you celebrate in the school and you go to the red light areas with friends. Yes. Experimentation. And then you get surprised, you know, mera bachcha to kuch karta nahi hai. Yes, exactly, ma'am. And nowadays, I mean, I must say this thing, मैम ने कहा जहाँ पार्टी की बात कही है तो I must say this thing कि आजकल की जो पार्टियों का ट्रेंड है यंग लोगों की या बैचलर पार्टी, this is totally a change. I mean now पहले जो होता था कि सोशल गैदरिंग के लिए जाते थे या अच्छा खाना खाने के लिए जाते हैं, आजकल की जो यंगस्टर्स की पार्टी होती है, they are mostly for the enjoying the drugs. अभी अल्कोहल की भी नहीं हम बात कर रहे हैं, आप देखते हैं कितना ज्यादा सुशांत का केस आया था, चरस, गांजा और ये जो है सब चीजों को इतना फैशन बन गया है ये कि हमने वीड लिया. तो यंगस्टर पार्टीज में आजकल दिस इज वेरी कॉमन. एंड अनदर थिंग इज द सेक्स. दे आर कॉलिंग द गर्ल्स, दे आर कॉलिंग, इवन आई हैव सीन द लॉट ऑफ द बैचलर्स पार्टी, क्योंकि मेरे पास प्रेप के लिए भी लोग आते हैं, पीईपी के लिए भी आते हैं कि सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया और अब हम, सो आई एम जस्ट लिसनिंग द डिफरेंट स्टोरीज. सो दे आर मोस्टली यंग पॉपुलेशन. अगर पार्टीज है तो पार्टी का मतलब है वहां पर जो है ड्रग्स होंगे, वहां पर अल्कोहल स्मोकिंग तो होगा ही होगा, एंड साथ में they will find the to experimenting the sex also. So that is the new fashion of the parties. Multiple partners, changing partners. Yes, multiple तो है ही है, एंड पर वो हर उसमें पार्टी में जो है यही होता है कि नए टाइप की कोई लड़की आएगी या मतलब देयर डिफरेंट टाइम मैम. इवन द lot of the men are coming there so for the sexual activity, so they are just learning the anal sex. So young women की अगर हम बात करें, young women definitely biologically more vulnerable to the HIV infection than the young men. A situation as she is having the another reason is lack of access to the information of HIV or less power to exercise control on their sexual life, basically because they don't have the control many of the times forcefully, or many of the times due to the husband is going out, so they are getting, or the young marriages, early marriages जो है, that is also a कारण a cause in the HIV in the young women. So have the implications of the sexual development or sexual activity हमें मालूम ही है कि they can have the reproductive tract infection which the gynecologist must be dealing a lot, sexually transmitted infections, unwanted teenagers pregnancies, sexual abuse, criminal abortions, menstrual disorders. So they are the so many of the problem of the early sexual exposure. So yeah, this is the slide sexual abuse. और ये slide मुझे ध्यान है कि डॉक्टर शारदा जैन मैम ने
काफी पहले जब हम लोगों ने HIV लाइक एडोलेसेंट वर्कशॉप स्टार्ट की थी, तो तब भी ये मैम यही चीज बताती थी कि बिफोर दे टर्न टू द 18, 1 in 6 boys experience some form of the sexual abuse, and 1 in 4 girls experience some form of the sexual abuse. So it means that our boys are more vulnerable to the sexual abuse than even the girl. Or I still remember, and this is a very well fact which Dr. Sharda Jain used to say, कि जो sexual abuse है, mostly more than 80% is in their own home. अपने ही घरों से शुरू होता है. तो सेक्सुअल अब्यूज बाहर के लोग नहीं करते हैं ज्यादा, अपने ही घर के चाचा, मामा, अंकल और कजन और यही लोग जो है ज्यादातर सेक्सुअल अब्यूज का कारण होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज करते हैं अपनी ही घर की लड़कियों को. सो दिस इज ए वेरी वेल फैक्ट, एंड जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है, सो दिस इज द वेरी वेल सेड स्टेटमेंट कि सेक्सुअल अब्यूज स्टार्ट फ्रॉम देयर होम. इवन नाउअडेज आपको सुनते होंगे कि इवन द फादर, स्टेप फादर और अपने फादर अंडर द अल्कोहल दे यूज्ड देयर ओन child, girl child, for this sexual activity. So that is a very sad scenario, but that is there. So here I will just थोड़ा सा उसको बनाने के लिए मैं कुछ केसेस, 2-3 केसेस है मेरे पास, जो just this is just, I am not going into the detail of the technicality of these cases, but I just want to share the case, what kind of the this come across diagnosed और या बहुत सारे unanswered questions बचे रह गए हैं. So the case one, this is a 14-year-old girl admitted in the hospital with fever for 15 days, weight loss, loss of appetite. Taken treatment outside with the local doctors, but no relief. After doing the workup, blood reports only low hemoglobin, neutropenia, and rest more or less normal. But girl was like not talking, nothing, unable to find the cause of the fever. लड़की जो पेरेंट्स की जो कंप्लेंट थी कि बच्ची बहुत बीमार रहती है और कमजोर हो गई है, तो हम इसको लाए हैं और हमने बहुत जगह इलाज कराया, नहीं मिला. फ्यू नोड इन एब्डोमेन इन अल्ट्रासाउंड, डेफिनेटली सस्पेक्टेड टीबी. 14 साल की बच्ची में अगर इस तरह की कंडीशन है तो व्हाट वी विल सस्पेक्ट, वी विल डेफिनेटली सस्पेक्ट द ट्यूबरकुलोसिस. तो एंड न्यूट्रोपेनिया था, सो दे वांटेड फिजिशियन वांटेड द बायोप्सी, बोन मैरो and the biopsy of this node to diagnose the tuberculosis. As a routine for the biopsy, they thought of doing the viral markers, hepatitis B, HIV, and the HIV, this thing, hepatitis C. So, what is the incidental finding? HIV came out the reactive. Oh my God, 14 years, nobody could think of. This is the HIV positive. Family in the shock, no history of blood transfusion, etc. Reference came to me. First time trial, I tried to talk to the girl. Very difficult to talk to a young child, especially to know about, to get the answer about her sexual activity or something. Basically because I have taken the history, blood transfusion नहीं है, कुछ और नहीं है, मदर ठीक है तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन नहीं है, and but the parent, which I remember, it's a long back when we had started the Pushpanjali Crossley Hospital. शुरू में ही सबसे पहले ये केस आया था हमारे पास वहीं पर, तो they did not tell anything. And जब HIV रिएक्टिव आया, उसके फादर को जब पता चला तो he told कि नहीं भाई आप बच्चे से कोई ज्यादा बात नहीं करिए और हमें तो कुछ नहीं पता और कहाँ से हो सकता है, we don't have any clue. HIV वर्कअप हमने स्टार्ट किया कि CD4 एंड वायरल लोड भेज दें. सो अभी फिर देन अगेन नेक्स्ट डे आई फाउंड हर सिस्टर, जो कि शायद उससे 1 या 2 साल ही बड़ी थी, उसके रूम में, एंड कोई और बड़ा नहीं था. सो आई ट्राई टू जस्ट फ्रेंडली आस्क कि क्या करते हो तुम लोग और तुम कौन से उसमें हो, और सो काइंड ऑफ द थिंग. सो आई केम टू नो कि दिस लड़की, दिस गर्ल जो कि एडमिट हुई है, वो अपने मामा के साथ रहती है. एंड मैंने पूछा कि मामा बीमार है, तो शी टोल्ड कि और कोई केयर करने वाला नहीं है, तो मम्मी ने जो है वहां भेज रखा है. और क्योंकि नानी भी बीमार रहती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेता है. आई ट्राई टू आस्क बट समहाउ शी टोल्ड कि शायद कुछ, मुझे नहीं पता किस चीज का ट्रीटमेंट लेता है, पर मामा रोज जाना रात को एक भी खाते हैं. सो आई मीन दिस इज द, आई डोंट नो, एग्जैक्टली डोंट नो कि व्हाट वाज द ट्रुथ, कहाँ था
क्या था या कैसे मैं इसको कोरिलेट करूं. नेक्स्ट डे पेशेंट वेंट लामा, क्योंकि बिकॉज HIV के जो वर्कअप था was they were founding it or take the unanswered. Definitely suspicion can be the abuse of the, might be by the mama, might be his mama was HIV positive and given infection to the child, but girl was not revealing anything, she was just not talking at all. It can be the neuralistic or some fluid exchange while caring of the mama. I still know difficult answer and explanation, but which I am presuming as of now, even I think of this case, so this case can be of the sexual abuse or something is still unanswered. So जब तक हमें कुछ नहीं पता हो तो कहना बहुत मुश्किल है. But this kind of the situation can come across. So it's very difficult to diagnose HIV in young adults. क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी को पूछना, हिस्ट्री लेना कि तुम्हारे पास ये भी कारण हो सकता है, एंड वी आर नॉट टेस्टिंग इट. तो यहीं पर टेस्टिंग का रोल बहुत ज्यादा है. सो आई फाइंड द HIV टेस्टिंग शुड बी more freely available and it should be a part of the any differential diagnosis of any illness, which I am telling to the every physician and the every specialty. So that should be the that is the only answer to diagnose the cases in the young. Case 2, 17-year-old boy admitted with 1 month of the fever. Good family background, lot of anxiety of the whole family कि हमारा बच्चा 1 महीने से बीमार है, किसी भी तरह से नहीं ठीक हो रहा है. All investigation done. Only thing which came out, the TLC was 200 cells only. 200. I mean extremely low TLC. Suspicion of the blood cancer, I mean what not at all. जो क्योंकि like जब इस तरह के पेशेंट एडमिट होते हैं, fever of unknown reason I think is a very difficult to diagnose always, and it's a physician's dilemma always. So again done bone marrow, CT, even the PET CT कि कहीं हमारे बच्चों को कुछ कैंसर तो नहीं है और ये नहीं है, because they were like good socioeconomic stress के लोग थे. So but nothing significant came except the pancytopenia. Then in this case I remember ये केस में जो है ये भी पुष्पांजलि क्रॉसले का मतलब मैक्स का केस है ये. So this is also when the doctors, Dr. Grover and Dr. Gera just Dr. Grover नहीं थे, राउंड पे आए तो Dr. Gera was very much proactive about the HIV. वो ऐसे बोले यार इसका भी जो है एक वायरल मार्कर्स भेज दो और करा लो. तो just send कि जिस तरह की मतलब हो सकता है HIV हो, क्योंकि because Dr. Gera and me worked I mean quite a lot 15 years, so we have seen lot of cases. So he just sent the viral markers and yes, picture reversed, HIV reactive. Family was in the big shock. How it can be? Referred to me, they ask कि like आप Dr. Ruby से जाके बात कर लो, what to do, talk to the family, no clue. Mother told I did not saw this child, only the parents came to me because by that time I left Max. So they came to me. Mother told कि for last few months child is low, थोड़ा सा चुप रहता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा बहुत ही सीधा है. आई ट्राई टू आस्क कि कोई गर्लफ्रेंड कुछ ऐसा हो, कहीं गया हो, किसी ने अब्यूज किया हो. तो मदर को कुछ नहीं था, बट लिटिल बिट ऑफ द सस्पिशन, लाइक मदर वाज टॉकिंग कि नहीं 2 महीने से बहुत चुप रहता है. अगेन आई डिड नॉट सी, नॉट अलाउड टू टॉक टू द चाइल्ड. ओनली हिस्ट्री गिवन बाय द मदर कि 2 महीने पहले ही वेंट समवेयर फॉर द स्कूल ट्रिप फॉर 1 वीक टू द फ्रांस, बिकॉज इट वाज इन स्कूल में. आजकल जो है सिस्टम हो गया है कुछ स्कूलों में कि वो वेकेशंस में बच्चों को इवन अब्रॉड ट्रिप पे ले जाते हैं, कई बार फ्रेंच लैंग्वेज के लिए या कुछ. सो कि जब से वहां से आया है तब से थोड़ा सा चुप रहता है, बट हमारी रोज बात होती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड ही वाज नॉट टेलिंग एनीथिंग, बहुत सीधा है, सिर्फ मुझसे ही बात करता है वो. दिस काइंड ऑफ थिंग. कॉजेज अगेन वी डोंट नो, बट दैट वाज ए केस ऑफ द एक्यूट सीरो कन्वर्जन. 200 जो अगर हमें TLC मिलता है या हमें 1000-2000 TLC मिलता है, that means low TLC sometimes is a cause of the acute seroconversion. जब अगर HIV transmission fresh होता है, मतलब 2 महीने पुराना, 3 महीने पुराना, then only we can see this kind of the picture TLC. Otherwise बाद में तो chronic जब होते हैं तो TLC कम जरूर होता है HIV के patients में, पर 4000, 5000, 6000 तक मिलेगा. Always please remember, अगर आपको अपने
सीबीसी में आपको टीएलसी कम मिलता है। पहले हम लोग सिर्फ एक ही डिजीज के बारे में बात करते थे, टाइफाइड हो सकता है, टीएलसी कम है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, परंतु एचआईवी इज अगेन ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट reason to test HIV in such cases where you find the low TLC. So it was a case of acute confusion. We have just worked up that patient. उसका CD और ठीक acute. रूबी ने जो बात कही है मैं बता रही हूँ, my husband is a pathologist and he also says जब भी तुम्हारा TLC कम हो वायरल मार्कर जरूर कराओ। Yes. जब भी TLC कम हो वायरल मार्कर जरूर कराओ। Yes ma'am, am I audible? Hello? मतलब इस बच्चे में भी अगर मैं बात करूं तो it was definitely a case of the acute seroconversion. I counseled the patient. I tried to कि ये जो है acute में होता है और TLC कम होता है, जैसे ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे he will be normal. और कुछ दिनों में अगर आप कुछ भी नहीं करते तब भी बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, because he was suffering from the fever. They were very much concerned कि क्या हुआ, but I lost this patient also, मतलब lost to follow up. So he didn't come back to me. So it can be a sexual contact. Whenever he was out, he may be sexually abused also, because very common young adults, young children जो है बड़े लोग उनको sexually abuse करते हैं, and it is the most common is the anal sex. Anal sex is very very common. I don't know how many of the gynecologists has found these patients or such patients, such history, basically because we are not taking very much into the sexual history. But the anal sex, और मुझे बहुत अच्छे से याद है डॉक्टर शादिया मैम, आप हमेशा कहा करते थे कि गांव में बड़े बच्चे छोटे बच्चों को छोटे में ले जाकर अब्यूज करते हैं। मुझे मतलब आपके एक पीपीटी का वो बिल्कुल अच्छे से बहुत अच्छे से याद है वो। So बहुत सारी मैं यहाँ पे डॉक्टर रूपी बताऊंगी गायनेकोलॉजिस्ट के रिलेशन में, the source is the person who is giving is the anal sex, the person who is used to of bisexual sex, and ये लोग जो है जब if they meeting a woman then they have a vaginal sex. They normally the woman normally does not allow anal sex, but the boys use younger boys for the anal sex. So the source is the anal sex. The person जो दे रहा है वो bisexual है. Yati? Hello? Okay. So this case also can be the sexual abuse, and I don't know the answer, so I can't comment on this because this patient also I lost the follow-up with this patient. Case 3. It's a very sad this thing for me. I mean, I still remember that girl's face. 46-year-old male admitted to the hospital, came out to be HIV positive. This is the first time he told कि मतलब पहले से उसको नहीं पता था, तो पहली बार जो है HIV positive आया. So history taken by me because HIV positive जैसे आता है तो I received the referral definitely. तो wife died 2 years back with unknown cause, जिसका कि पता नहीं है. उनका कहना था कि बस बीमार हुई थी और काफी दिन तक बीमार रही थी और जो है उसकी डेथ हो गई. So मतलब without knowing the even HIV status. So I, as HIV physician, I could relate the wife must be died due to the undiagnosed HIV, which is a very common problem, and many people are dying with HIV and undiagnosed. So they have the 2 children, younger one girl, 11-year-old, one was I think 18-year-old. So I asked कि भाई दोनों का टेस्ट कराना पड़ेगा, आपका तो ट्रीटमेंट हम शुरू कर देंगे, पेशेंट का वर्कअप स्टार्टेड, बट आई गिव एम्फेसिस ऑन द कि आप जो है बच्चों का टेस्ट जरूर कराएं. तो बड़ा लड़का की मैंने पूछी कि नहीं वो तो ठीक है. आई आस्क्ड की छोटी लड़की की हाँ उसको कुछ स्किन प्रॉब्लम रहती है. मैंने कहा एटलीस्ट आई वांट अ गर्ल टेस्ट टू बी डन इमीडिएटली. सो दे हैव डन द बोथ द टेस्ट. बॉय वाज नेगेटिव, बट दिस गर्ल 11-year-old girl, old girl came out to be positive. And I asked कि ये लड़की को यहाँ पर आती है क्या. I met her. She was like a beautiful girl. But with all the skin lesions, उसकी स्किन पर पूरा इस तरह की इसके पैचेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब किसी के सामने भी नहीं आती थी और पूरी स्लीव्स के जो है कपड़े पहनना पसंद करती थी. यंग एज, 11 साल की बच्ची, 8th क्लास में पढ़ती थी. Plenty of problems with the teenage girl, class 8, because 2 साल पहले मदर की भी डेथ हो गई थी alone. But
I mean, father का जो treatment start हुआ, that is okay. I have started and he was started on the treatment, and I have started the treatment for this girl also. But as always, adolescent को treat करना is the biggest challenge, very big challenge. Basically because they are dealing with their own problems, adolescent problem with this HIV. Very difficult to explain them. Very difficult to make them adhere to take the medicine. So counseling is the only answer. You keep on trying. Don't give up, which I did. So I could manage. बहुत बार मैं उसके लिए मतलब I just did manage even कि मैं उसके लिए जब वो लड़की आती थी मेरी ओपीडी में तो मैं उसके लिए जो है कभी जूस मंगा के रखती, कभी चॉकलेट मंगा के रखती, just to कि to handle, to make rapport with that girl. She should be opened up. What are the problems? And she disclosed so many problems कि स्कूल जाना छोड़ दिया कि मेरे को ये हाथ में दाने हैं तो मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, मुझे शर्म आती है, मुझे बच्चे छेड़ते हैं. तो इस तरह की उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम थी. I have started 2-3 साल, 2-3 years that girl was I handled very well. But the medicine which we have started to her, it is जिसकी हम बात करते हैं efavirenz. I must say here, be very cautious about when you are starting this medicine. अगर आप स्टार्ट करते हैं जो इफाविरेंज बेस वायराडे या कुछ भी हम जो टेनोफोविर एम्ट्राइसाइटामिन तो ठीक है, बट इफाविरेंज हैज अ लॉट ऑफ द न्यूरोसाइकोलॉजिकल इफेक्ट. इट कैन लीड टू द डिप्रेशन, इट कैन लीड टू द सुसाइडल टेंडेंसी. फादर मेंशन मी कि ये लड़की जो है बार बार कुछ अच्छा नहीं बोलती है और इसको जो है दवाई खाने के बाद चक्कर आता है, उठती नहीं. आई आस्क्ड टू चेंज द मेडिसिन, बट देवर बिकॉज दूसरी मेडिसिन को 2 या 3 गोली खानी होती है, जो सेकंड लाइन है उसने वो नहीं खाई, एंड शी वाज कंटिन्यूइंग विद दैट मेडिसिन. बीच में आती कि नहीं अब मुझे ठीक है, अब मुझे चक्कर नहीं आता, मैंने स्कूल भी जाना शुरू कर दिया है. एंड बट द वन वेरी बैड डे दिस गर्ल कमिटेड सुसाइड. छत से कूद गई, 3री मंजिल से जाके कूद गई. रात को उसके फादर का मेरे पास फोन आया कि मैडम मैं वहीं पर मैक्स वैशाली में लेकर जा रहा हूँ और लड़की छत से कूद गई है. एंड वी कुड नॉट सेव दैट गर्ल. She was having a head injury. So it's a very sad like incident of my life which I feel very bad about that girl because 2-3 साल में उसके साथ इतना अच्छा सा मेरा एक interaction हो गया था, and I've always wanted to help that. So why I'm saying this, this is another problem to deal with the adolescents. We don't know what kind of the issues they are having. Mother नहीं थी, father और brother के साथ लड़की रहती थी. Or like there may be, I don't know what can be the unsaid, how many unsaid problems that girl was facing or what can be the answer. But father was definitely caring. वो जब भी हम बुलाते थे टाइम पर उसको लेकर भी आता था, but like he could not save the girl. So these adolescents, how they think, how they feel, and the medicine also. Efavirenz is a very toxic drug, neuropsychological side effect. So always, that's why I always say, it is HIV treatment is not that easy. You just started the one pill and the game is over. We need to keep on tracking because this is a lifelong treatment. We need to keep on tracking these patients. They can have the acute kidney injury, they can have the liver injury, they can have the neurological side effects. So we need to track each and everything. हर पेशेंट्स को हर मेडिसिन का डिफरेंट साइड इफेक्ट होता है और उसी के लिए हमें टाइम टू टाइम इवन द फेलियर को मॉनिटर करना पड़ता है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट को मॉनिटर करना पड़ता है, सोशल प्रॉब्लम को हैंडल करना पड़ता है. सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज which needs to be handled while treating these patients. So this is a evolving science. Lot of new things are here, and definitely the expert. I'm not saying I am expert, so I only have to treat. Everybody should know, but they have to understand the nitty-gritty of the treatment. All kind of the side effect, all kind of the problem, all kind of the drug interaction. So a lot of things are there with these medicines and in the treatment of the HIV. So that was with this girl and with the sedative. So these are some challenges to diagnose and treat the adolescents. I already told diagnosing is very difficult because जब young बच्चा किसी भी FEOC या किसी भी बीमारी में आ सकता है, very difficult to just ask for the HIV test. क्योंकि एक टैबू है, एक डायलेमा है कि नहीं हमारा बच्चा तो सब माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चे के साथ तो कुछ नहीं होगा, हमारा बच्चा तो ठीक है. But parents should be very vigilant. Why suddenly the child has stopped talking? Why suddenly the child is living in the isolation?
Why suddenly the child is more outside? Why suddenly the child जो है रात रात को सोता नहीं है? So we have to be very careful. They may be having the drugs exposure, they might be abused, they might be having the sexual contact with a girlfriend or with outside. So there can be the different problem which every parent should be more and more vigilant when they are sending to the hostel. कहीं भी भेजते हैं या यहीं पर रहते हैं तो बच्चों को स्पेशली जो 12 साल से और जो 19 साल की उम्र है इस बीच में बच्चों को करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. सो डिस्क्लोजर ऑफ द रिपोर्ट अनदर चैलेंज कि HIV पॉजिटिव तो आ गया, आप कैसे करके बच्चे से आपको बात करना ऑलवेज नॉट पॉसिबल. लाइक फाइंडिंग द कॉज अनदर डायलेमा बिकॉज दे डोंट गेट ओपन अप. फैमिली एंड द सोशल स्टिग्मा इज वेरी बिग. अगर किसी फैमिली में यंग बच्चे को हो जाता तो उनको लगता है उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई है, हम किसको मुंह दिखाएंगे, हम कैसे बताएंगे, हम क्या करें. पहली चीज तो कि चाइल्ड को दे हैव द फियर ऑफ लूजिंग द चाइल्ड एंड द अनदर थिंग इज द सोशली कि हम कैसे बताएंगे आगे क्या होगा, ये बच्चा शादी भी नहीं कर सकता. और बहुत सारे मतलब उनके दिमाग में क्वेश्चंस की पूरी एक जो क्वेश्चंस माँ की building rapport with the adolescent is not that easy. Treatment is not that easy basically because adherence of the medicine is very important. कैसे आप जो है बच्चे को काउंसिल करो कि ये मेडिसिन तुमको लेनी ही लेनी है, कैसे लेनी है, क्यों लेनी है. साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन आर समवेयर बिकॉज दे फील डिजी कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं. इमोशनल ट्राउमा और जो एडोलेसेंट्स का अपना जो ट्राउमा है दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. मेडिसिन के फिर साइड इफेक्ट यंग एज में बिकॉज यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट टू ट्रैक द लीवर, टू ट्रैक द किडनी. हीमोग्लोबिन कुछ मेडिसिन पहले थी ज़ीरोबिन टाइप की, उससे हीमोग्लोबिन सडनली फॉल हो जाता था. सो देयर आर लॉट ऑफ इशू, अदर एज रिलेटेड इशू. एंड देन लास्ट कम द पॉक्सो एक्ट which is डॉक्टर दिव्या ने आज मुझे जब मैं अपना कल बता रही थी बात हुई तो वो बोली कि भाई ये तो पॉक्सो एक्ट भी आता है और हम कैसे जो है इस पर बात करेंगे. तो मैंने एक दो स्लाइड पॉक्सो एक्ट पर बताई हैं. although it is not related with my HIV talk but the POXO act is mainly for this is the protection of the children from the sexual offense. मैडम ने तो बहुत सारी ट्रैफिकिंग की भी वर्कशॉप की हैं और मैंने भी उनके साथ काम किया है इसमें, ट्रैफिकिंग वर्कशॉप और चाइल्ड अब्यूज पर भी काफी किया है. सो पॉक्सो एक्ट जो है मेनली सेक्सुअल अब्यूज के लिए है और अच्छा खासा इवन अभी तो उसमें न्यू अमेंडमेंट जो 2019 में हुआ था, मुझे बहुत लंबा है, मैंने सब चीजें मिली. 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था 2012 के बाद उसमें काफी जो है नए अमेंडमेंट भी हुए थे जो इम्प्रिजनमेंट के और जो एक्यूज के लिए जो पनिशमेंट थे उसमें. तो जैसे पॉक्सो एक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा. पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, बहुत सारे इसमें कारण है क्या हो सकता है. प्रेजेंटिंग अंडर सेक्शन 21 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2000 पॉक्सो के बारे में बताना चाह रही हूँ कि फ्रॉम लास्ट 2 years there had been a drive and जो रिपोर्ट्स पॉक्सो में आती थी हजारों में नंबर अटक गया है. Now it has increased 400 times. Yes. These cases have just rocketed. Yes, ma'am. डॉक्टर रूबी, हमारे ये तो ये कोई मेडिसिनल एस्पेक्ट हो गया. मतलब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज से आ रहा है, चाहे एक्सपेरिमेंटेशन से आ रहा है, बट हमारे को एज ए गायनेकोलॉजिस्ट का क्या रोल हो जाएगा कि इसमें वो किस तरह से इसको डायग्नोज करें. मैं एक आपको मैडम की प्रेजेंटेशन के बाद दिस इवनिंग आई एम गोइंग टू सेंड यू PPT what all work has been done by the government of India on as far as the adolescent curbing of creating awareness is concerned. But what I wish to tell how they can play a role to creating awareness among the parents as well as on the adolescent girls. ये भी थोड़ा सा हाईलाइट करिए, इसको थोड़ा सा उसमें करना पड़ेगा. यस मैम. देखिए जो आजकल जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बहुत काम किया है, नैको का जो प्रोग्राम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब इंडिया का जो ART प्रोग्राम है वो काफी वर्ल्ड में काफी उसने नाम कमाया है और वी गॉट गुड सक्सेस इन हैंडलिंग दिस HIV एज ए लाइक बिग कंट्री. और जो हम हमेशा कहते थे कि हमारे यहाँ किसी भी डिजीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, परंतु आई मस्ट अप्रिशिएट द गवर्नमेंट जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, because I am associated since starting with this organization, so they have done the wonderful work.
एंड अभी जो है उन्हीं की वजह से जो हम HIV ट्रांसमिशन कम हुए हैं वो बात करते हैं, क्योंकि हम लोग तो मैं साल में जो है मेरे पास शायद 5,000 टोटल केसेस होंगे अभी देखने के लिए, एंड दिस प्रोग्राम इज हैंडलिंग हमारी इंडिया में 2.1 मिलियन पॉपुलेशन 1 मिलियन पीपल HIV से हैं, और उसमें से कि 1.7 मिलियन 1.2 मिलियन पीपल ऑलरेडी एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट पर है. सो डेथ रेट भी कम हुआ है, एंड दे आर नाउ फोकसिंग ऑन द these youngsters more. Now they have came up with the app. जो एक ऐप भी आया है, नैको ने लॉन्च किया है, हाउ टू टेक द मेडिसिन. एंड कोरोना के टाइम में दे हैव जस्ट वंडरफुली डन, दे हैव डन वंडरफुल वर्क. Even if my patient, I was not able to deliver the medicine, I send them, I just contact with the NACO, I ask him, मेरा ये patient है, I want to send them to this center, he can collect the medicine, because only ART center, जितना भी lockdown में सिर्फ antiretroviral center was working functionally, fully functionally. एंड उनके जो सोशल वर्कर थे जाकर घरों में भी उन्होंने मेडिसिन दी है. सो दे आर वर्किंग वंडरफुल. एंड यूथ के लिए दे हैव द LGBT ग्रुप, they are working with the sexual group, commercial sexual worker, they are working with the hijras, they are working with the all the transgenders, and these MSMs, men having sex with men, gay population, LGBT, सभी लोगों के साथ 1-to-1 काम करते हैं. गवर्नमेंट जो अपना 1-to-1 काम करे, because we are not living the any society, इन सब के साथ स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, even the IV drug user. So they are just trying to contact. And I must say, यंगस्टर्स के लिए मैं यंग लोगों को हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी सेक्सुअल, आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है मैम, कि जो जितने भी जो ये ऑफिशियल ब्रदर्स हैं जहाँ की सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, आप जीबी रोड लीजिए या कोई भी लीजिए, जहां पर कि गवर्नमेंट को पता है कि ये दीज आर द एरियाज हियर द सेक्सुअल एक्टिविटी हैपेंस, सो वहां पर सेक्स इज क्वाइट सेफ. सिंपल रीजन कि बिकॉज दे ऑल हैव बीन टेस्टेड, हर 6 महीने में उनकी टेस्टिंग होती है. They all are on the antiretroviral treatment. जितने भी लोग हैं सभी को ट्रीटमेंट मिलता है, सभी का वायरल लोड सप्रेस है. सो मीन्स अगर वायरल लोड सप्रेस है तो दे कैन नॉट ट्रांसफर द इजिली, एंड दे ऑल हैव बीन टॉट हाउ टू यूज द कॉन्डम. इवन टू द मेल पार्टनर they have been taught to use the female condom, and they have been taught कि आप अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो कैसे उसको बिना पता चले आप जो है उसको कॉन्डम यूज करा सकते हो. सो गवर्नमेंट इज वर्किंग टू दैट एक्सटेंट. फॉर द यंग पॉपुलेशन स्टिल हमारी जो प्रॉब्लम है, अगर आपको ध्यान होगा मैम, एक यूथ प्रोग्राम शुरू हुआ था, जब हुआ था कि मैंने काफी स्कूलों में ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी कि जो टीचर्स को कि अबाउट द सेक्स एजुकेशन, और उस पर जो है जो हिंदू धर्म के और काफी लोगों के धार्मिक लोगों ने किया था कि वी आर ए कल्चरल कंट्री, हम लोग सेक्स एजुकेशन करके सेक्स को बढ़ावा दे रहे हैं और हम लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हैं. सो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम वेयर वी आर स्टिकिंग, कि सेक्स एजुकेशन जो है इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई है. और अभी तो करिकुलम का पार्ट भी बना है. CBSE इज ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ द वर्कशॉप ऑन द सेक्स एजुकेशन. मैंडेटरी है कि गुड टच और बैड टच, पर बहुत सारे स्कूल, मैंने बहुत स्कूलों में किया, एंड आई फाइंड कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज्यादा अवेयर हैं अबाउट ऑल दिस थिंग, गुड टच, बैड टच, एंड व्हाट इज द सेफ सेक्स देन द प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन. बिकॉज प्राइवेट स्कूल, नॉट ऑल प्राइवेट स्कूल्स आर डूइंग दीज वर्कशॉप्स, they are just showing कि they have done, but government schools में mandatory है, so they are doing. So government is working to that extent and lot of work, but everybody has to work. So it is a role of the gynecologist. Gynecologist के लिए जैसे आप teenage pregnancy बहुत सारी diagnose करती हैं, तो that is the time where you can just tell them about the safe sexual practices. There are I mean आप मैम, cervical cancer is very common, cervical cancer के लिए, so that is also again the adolescent age when the every girl should take the vaccine. बाहर की कंट्री में तो it is important for girl and boy both, but हमारी कंट्री में सिर्फ लड़कियों के लिए अभी अप्रूव्ड है, तो हर गर्ल को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लग जाना चाहिए. And that is the time when you have to ask, all the gynecologists should talk about the safe sexual practice also, because if the parents are not comfortable, so at least the gynecologist should not miss that chance to teach the every child who is coming to them. And you must be having a lot of the sexually active girl. Nowadays you cannot ask you are married or not. I used to ask simply sexually active or not, because marriage is not a abhi matlab time is changing.
बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो अभी मैडम इसको HIV निकल आया, ये तो शादी इज नॉट ए लाइक रीजन कि HIV होगा शादी वाली कोई. So this is the very important thing. So that's how the role of the gynecologist is very, very important to diagnose, counsel, to teach. And I know कि जब भी स्कूलों में भी बात होती है लड़कियों को पढ़ाने की, चाहे वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हो, तो gynecologist को बुलाया जाता है. So they should not miss even the HIV. They should take this HIV as in their talk once, like कि how to deal, कैसे HIV होता है. So this is the thing which everybody we have to, and at least we have to talk to our children. That is a very important, at most important thing. कि हमारी फैमिली के जितने भी यंग बच्चे हैं सबको पता होना चाहिए कि ये जो है सब चीजें क्या होती है. I must say my son is in first year, second year engineering now, but he knows everything. I taught everything कि like condom कैसे use करना होता है, क्या है, कैसे sexually activity should not be there, किसी से कितनी दोस्ती करनी है. मतलब these are the things you have to be. Unless you are friendly with your child, nobody else will be. They will learn outside. My son used to say कि मम्मी आप तो सोचती हो कि सब बच्चों को सब कुछ पता है. Know everything. कौन कहाँ से देखना है, क्या करना है, वो everything they know. So we think कि हमारे बच्चे बहुत सीधे हैं, नहीं पता, but ऐसा नहीं है. This is the time. Social media का जमाना है तो everybody knows everything. So that is the thing. And बस पॉक्सो एक्ट के बारे में मैं जो सिर्फ जो डॉक्टर दिव्या ने मेरे को कहा था, तो it is definitely mandatory for the doctors to register a medical legal case. तो मैं यही वाला point about, but simultaneously offer the prophylaxis for the sexually transmitted disease, including HIV, is also a responsibility of a medical practitioner who is dealing with such cases. And not a single doctor can say no to no for the examination of these sexually abused cases in the with the fear of कि ये पुलिस का केस है या कुछ ऐसा है. So we have to deal such cases. That's what is that's what is all about the adolescent. Now we can discuss all the issues. If anybody has any question, if anybody has any like experience to share, thank you so much. Thank you, Dr. Ruby, for your excellent talk. Madam Sharda Jain ma'am, please आपके comments चाहिए बहुत सारे, क्योंकि हम लोग we gynecologists, we are seeing a lot of cases of sexually active girls, and it is high time now we tell them how to use condoms, prevention, everything, and how to look for STDs, viral markers कराने. ये सारी चीजें अब आपने हमें बता दी हैं, हम सबको ये practice करना चाहिए. Ma'am, over to you. I think, gynecologists must popularize themselves in the local schools. Their teachers and all are coming to you as a patient, and I think, you should see to it that the access is there. और आपने महीने में अपने लिए लगाना है कि भाई मुझे महीने में 1-2 घंटे की वर्कशॉप करके आनी है. Let me be very frank with you, adolescent health workshop is not an easy workshop. Yes. आपको स्किल लर्न करनी पड़ती है. पहले आपको खुद लर्न करना पड़ता है कि ये नेगोशिएशन स्किल वाला फंडा क्या है. The students are not interested in much of the diseases. उनको सिंपल चीजें बतानी होगी आपको. ये एक्सपोजर होगा, ये फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, बताना पड़ेगा बस थोड़ा सा. फिर उसको बताना पड़ेगा कि आपने अपना बचाव कैसे करना है. पहले तो उसको बताना पड़ेगा इस तरह से एक्सपोज करेंगे, आपको अपने से बचाव करना है. जब तक गायनोकोलॉजिस्ट को स्किल्स नहीं आएंगी, आप कितनी थियरी बात कर लो, आपको जो भी चीज आप पढ़ा रहे हो उसकी स्किल आपको आनी चाहिए कि किस तरह से आपने बताया तो वो अपना बचाव करें. तो वो वाली स्किल आने के लिए पहले आपको एडोलेसेंट हेल्थ की नेगोशिएशन स्किल की वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी. 3-4 वर्कशॉप्स है. हमने अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि मुझे सीखना है. Anything can be learned. Counseling is an art. Everybody can't counsel. The similar way counseling you have to learn. Secondly, आप कोई भी पेशेंट आपके पास सेक्सुअली एक्टिव आता है, बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट आते हैं आपके साथ, उनको अच्छी तरह से मालूम है सब कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में. आप इनवेरिएबली आप उनसे पूछो. पेशेंट 25 में से एक पेशेंट कहेगी तोबा अब नहीं जाऊंगी मैं, ये नहीं काम होगा.
एक हो जाएगी, 2 हो जाएगी आउट ऑफ दिस 25. 23 want to get back again. Absolutely, So ma'am. here comes the counseling. Times बहुत चले गए. Sex is like taking food and water. It is that need of a person. और वो टाइम चले गए कि आप ये बोलो कि जी अब मत करेंगे तौबा. तौबा करने वाले इक्के दुक्के लोग होते. 23% लोग बोलेंगे कि जी अब तो वहीं जा रहे हैं. तब आपको बताना पड़ेगा कि this is what you have to do it. And you have to tell them, look, अगर आप एक प्रेगनेंसी प्रिवेंट करनी है तो आपको ओरल कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा. She cannot use the condom. Condom का भी फेलियर रेट बताना पड़ेगा. बाहर तो 3% सक्सेस है, 3% फेलियर, और हमारे यहाँ 15% फेलियर, because gentlemen, they don't want to use it. Anyway, that's something. What I want to say, counseling you have to learn, workshop you have to do it. It is not a thing. Everybody says, I know, but nobody knows a single thing. मैं तो कॉल्पोस्कोपी की वर्कशॉप करती हूँ, मैं CNT की वर्कशॉप करती हूँ, मैं स्क्रीन एंड ट्रीट की वर्कशॉप करती हूँ. 100 लोगों ने भरा और 100 लोगों में 10 लोगों ने बोला कि वो CN स्क्रीन करते, 10 लोगों ने भरा कि वो CN ट्रीट कर का प्रोग्राम. उनको पता ही नहीं क्यों, क्या बोल क्या रहे हैं. So what I'm trying to say, everybody has to learn it. और बिना लर्न करे कुछ नहीं होगा. मैं आपको आज छोटा सा एक PPT भेजूंगी जो कि स्कूल्स के अंदर YHIV प्रोग्राम है, जो सबसे बढ़िया सेक्रेटरी है, जिसका पूरा रिकॉर्ड अच्छा है, वो PM से सिलेक्ट होकर तब जाता है, वहां पर पोस्टिंग होती है उसकी. ऐसे किसी को वहां पर सेक्रेटरी नहीं बनाते नाकों में. इट इज द सेक्रेटरी who does the work. सेक्रेटरी की उन लोगों की वर्किंग देख लीजिए आपके नाकों में. मैंने नाकों में एज एडवाइजर काम किया 4-5 साल, तो आई नो व्हाट द वर्किंग इज. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन. अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन जानना चाहते हो तो आपको वो काम सीखना पड़ेगा. देयर आर बुक्स अवेलेबल कि किस तरह से काउंसलिंग करते हैं. ये आर्ट है, इट इज एन आर्ट which I think our people have to learn it. But मैं ये कहती हूँ कि yes, we are a downward trend. I was happy to read yesterday 85% load has come down. आज की तारीख में 32 million, 1 million means 10 lakhs, 32 million load है total HIV positive cases का वर्ल्ड में, और हम 2 million. We are only 2 million. मतलब 2 million का मतलब 20 lakhs whole country. लोड नहीं हम लोगों के पास ज्यादा, साउथ इंडिया में ज्यादा है, स्टेट्स में ज्यादा है, पर हमारे पास ज्यादा लोड नहीं है. बट अगर अब हम इसको कर्ब नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी. The one which is going to rise 2030 तक, अगर डॉक्टर कम्युनिटी नहीं संभली, अगर मेडिकल फ्रेटर्निटी नहीं संभली, उसको पिकअप नहीं कर पाएंगे तो डिजीज 50% बढ़ जाएगी. एंड दिस इज व्हाट आई विश टू टेल यू. मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भेजूंगी, प्रोबेबली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा कि क्या चीज ये है एडोलेसेंट की वर्कशॉप में. और चूज तो आपको खुद करना पड़ेगा, और आपको काम करने, आपकी इनर कॉल आती है कि मुझे काम करना है, तो आप काम करोगे. खाली कह देने से आई नो देयर इज अ सिंड्रोम, आई नो दे डू नॉट नो एनीथिंग बियॉन्ड आई नो. आप पूछ लो उसके बाद है क्या. मैं बताना चाहती हूँ, आप गायनोकोलॉजिस्ट से भी पूछो ऑफ द टाइम, ये HIV क्या होता है यार, इसका फुल फॉर्म बता दे, 50% नहीं बता पाएंगे. नाम में छिपा हुआ है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. डॉक्टर रूबी आपको बोलते हैं कि TLC कम हो जाए, उसकी जरूरत नहीं, आपको वैसे ही मालूम है कि कम हो जाएगा. रूबी के कहने से थोड़ा ना होगा. हमने कुछ सोचना है, हमने सोचते ही नहीं है. मेरी बात को बुरा मत मानिएगा. किसी भी एरिया में आपने काम करना है, आपको उसके लिए स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, और स्किल खाली कहने से नहीं आएगी. स्किल के लिए जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. In my younger days, I have done a lot, both at the Delhi level, both at the national level. पागलों की तरह मैंने काम किया, पर 2006 के बाद मैंने कहा एडोलेसेंट हेल्थ की वर्कशॉप मुझे नहीं करनी. Now it is the time the youngsters should do it. But I think this is a challenging area, because WHO अगर कह रहा है कि अगले 10 साल में अगर मेडिकल फ्रेटर्निटी ने काम नहीं किया तो आप इस बीमारी को 50% एक्सकेलेट हो जाएगी. Thank you, ma'am. This is very important. It's so heartening to know कि डॉक्टर रूबी बंसल ने हमें बताया
in the red light areas, the government is doing so much work that every 6 months they know how to protect themselves. So they know how to take the prophylaxis for retroviral therapy. So why can't we do something for our patients? हम लोग इतना ज़्यादा अपने को बंद क्यों रखते हैं? हम लोगों को खुल के उनसे बात करनी है. We have to listen to ma'am. We have to learn the art of counseling, of negotiating with the adolescents and teaching them. We have to get in touch with the local schools. It's a very good message. And then with the teachers, along with the teachers, हमारे को उनसे बात करनी है. Adolescents से हमारे को खुद सीख के आगे बढ़ाना है ये प्रोग्राम. हमारे को हेल्प करना है एक दूसरे को. Let's hold hands together and see to it that we are able to abolish HIV from our country. Thank you so much. Dr. Jyoti? एक्सक्यूज मी डॉक्टर रूबी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ. जी. डॉक्टर मीनाक्षी. हाँ जी. Yes. मीनाक्षी, जो एक्सपोजर है, आई थिंक हम में से कोई ना कोई गायनेकोलॉजिस्ट आसपास अपने स्कूल्स में विजिट किए होंगे. मेरे यहाँ पे आसपास 16 सेक्टर में 2-3 स्कूल है. मैंने कभी एक बहुत बड़े स्कूल में 2-3 साल पहले किया था काउंसलिंग. तो आई थिंक काउंसलिंग इज, बच्चे जो है, जो लड़कियां हैं 5th to 11th वाली, दे आर वेरी ओपन टू काउंसलिंग एंड दे डू लिसन, बट इट नीड्स अ कांस्टेंट हैमरिंग. It needs a constant hammering. I mean, it's not that you go once and they will comply with your. It needs a constant. इसलिए टीचर्स की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी. Thank you, Dr. Dr. Jyoti? Dr. Jyoti, want to speak? Dr. Pathak, Dr. Jyoti, Dr. Abha? Dr. Jyoti? You unmute yourself. Unmute yourself. Counseling definitely is very important. I also have a suggestion. Slowly, if it starts with basic books, then लोग पढ़ेंगे, books will come to know, and teachers will also come to know about this. And this is very important because यही आगे जाके carry on करके HIV से AIDS बनेगा. We should spend time with them and do a proper counseling. Now here I wish to tell you, जब आप पहले अच्छे वर्कशॉप करने वाले बंदे बन जाओगे, आपके एक्सपर्टाइज आ जाएगी, and for an adolescent workshop you have to leave the phone number that your gates are open to you for 24 hours 7. वहां भी प्रॉब्लम आती है. आपने 1000 बच्चों को कह लिया तो आपको समझ लीजिए 10 कॉल तो रोज आएंगी. आपको वो वाली चीज काम करनी पड़ेगी, क्योंकि कहने से खाली सुपरफिशियल काम नहीं होगा. जब भी आपको काम करना पड़ेगा, डीप काम करना पड़ेगा. And again, I really want to do it. Being a gynecologist, knowing little bit of an HIV does not make you a good workshop conduct करने वाला बंदा. You have to learn that particular technique. And there are people should say that we want to learn it. There are people who can train you people. Anybody else wants to make a comment? Dr. Archana Pathak, you want to make any comment? Anybody wants to make any comment? Want to share their own experience? I think Dr. Divya Singhal, then in that case, we wind up. It had been absolutely a great session. I will send you a couple of information on this particular thing. And मैं आपको एक बुकलेट भी दूंगी, जो कि बहुत थोड़ी सी ज्यादा बुकलेट है. जो लोग भी HIV में इंटरेस्टेड है, उसको सेव कर लीजिएगा. अपने घर में रोज एक पेज भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा. So I will share on the same group about this. And Dr. Madam के जो presentations है वो आपके पास already are there. We can send you the links again for the same. Anybody wants to speak anything? Ma'am, बस I just wanted to add this कि एक मेरे पास पेशेंट आई, adolescent, she must be about 14 years with her mother. बिल्कुल चुप. She wouldn't speak. उसकी मॉम ही उसकी सारी बातें बता रही है. मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी, क्योंकि उसने एक भी शब्द नहीं कहा अपने मुंह से. और उससे मैंने फिर पूछा कि बेटे आप भी तो बताओ कि आपको क्या हो रहा है. क्योंकि बस ऐसे ही वेग एच एंड पेन, कभी अपना सर में दर्द बताए तो कभी शोल्डर में, तो कभी मतलब वेरी वेग सिम्टम्स. एंड देन आई टुक हर टू द अदर रूम, टू द एग्जामिनेशन रूम. उससे थोड़ी सी मैंने उसको
बातें की इधर उधर की, एंड व्हाट शी लाइक्स, व्हाट हर फेवरेट स्पोर्ट इज, दिस एंड दैट, फिल्म स्टार. तो उसके बाद she told she could open reveal that she was being sexually abused by her uncle. So हम लोगों को छोटी छोटी टिप्स मिलती हैं पेशेंट के बिहेवियर से, हमारे को वो चीज पकड़नी होगी. थैंक यू मैम. And in fact, I just wanted to add. Sometimes you find the people who are HIV positive themselves, if you find then their kids also are positive. तो उनको बच्चों को एक बार ये पता चल जाए कि वो HIV है, they lose interest in studies, उनको अपना सारा future dark दिखाई देने लगता है. Yes. Here comes counseling. Now you can live a normal life. You can live a normal life. जिनको ये पता चल गया कि they can lead a normal life, उनकी तो बस जिंदगी सुधर गई. और जिनको ये पता चल गया कि बस now they are doomed to death, वो तो बस गया, ना पढ़ाई का गया ना सब कुछ बराबर हो. Yes ma'am, absolutely. Basically because कोई भी even बच्चों की नहीं, एडल्ट भी जब मेरे पास पहली बार आते हैं, so they have so much of the fear. इतना ज्यादा डर, इतना ज्यादा फियर होता है कि HIV के नाम का ही फियर बहुत ज्यादा है. और जब तक उनको प्रॉपर, मतलब मुझे 1-1 घंटा लगता है पेशेंट को बिठाकर समझाने के लिए कि क्या है, कैसे है, क्या आप कर सकते हैं, आगे आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है. और दिस इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ उसके साथ डिस्कशन करना. उसकी बहुत सारी सोशल इश्यूज है, बहुत सारे इवन फाइनेंशियल इश्यूज हैं HIV पेशेंट्स के साथ, तो वो सब भी आपको साथ साथ हैंडल करने पड़ते हैं, डिस्कस करना पड़ता है कि आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हो. सो दिस इज काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई मस्ट से कि मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरे साथ जितने भी पेशेंट हैं, काफी सारे जो बिल्कुल यंग भी हैं, यंग पेशेंट्स भी हैं, आफ्टर 2-3 times they all come smiling. So even in corona times, not a single of my patient have this fear in the mind कि उनको कोरोना हो जाएगा या उनको कुछ हो जाएगा. So we need to have a good contact with the patients. That is very important. तो आपने फियर की बात करी तो मैं फियर की बात करूंगी सब गायनेकोलॉजिस्ट के साथ. मैम, इफ यू डू अ फियर तो आपकी जो वाइब्रेशन है बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगी. Yes. और दैट इज द वाइब्रेशन. जब फियर की वाइब्रेशन है, यू अट्रैक्ट द वायरस. भाग के आता आपके पास, चिपक जाएगा. Exactly. अगर आप मेडिटेशन करो और आप अपने को ये बोलो पावरफुल बने, आपकी वाइब्रेशन 10 times ऊपर हो जाएंगे. कहाँ 200, कहाँ 2000, 4000. वहां पर वायरस नहीं लगता. जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब फियर साइकोसिस वाले हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं वायरसेस को. तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, 4 बार भगवान का नाम लो, 3 बार सन को देखकर अपने हाथ ऊपर करो, नहीं आएगा वायरस आपको, provided you use the mask. So I think thank you very much. I am going to share the presentation with you. उस presentation में थोड़ा crowded है वो presentation. मैं चाहूंगी कि कोई भी थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाए को तो 1 स्लाइड से 2 स्लाइड बना ले. मैं मालती को कहूंगी, मालती मेरे को थप्पड़ लगाएगी, तो इसलिए मैं कहूंगी कि उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को आप अच्छी तरह से बनाइए एंड सर्कुलेट लिबरली. एंड मैं चाहूंगी कि यहाँ पर बहुत सारे इनोवेटिव लोग बैठे हुए, छोटे छोटे ऐसे बनाइए जो आपके बोल सके, जिसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं उनको मैडम, नारे जो होते हैं उसके HIV के, कि प्लीज आइए चलिए मिलकर ये खत्म करें. वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बट अगर थोड़ा सा भी आप काम नहीं करोगे तो काम नहीं होगा. ठीक है. सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच. आई एम गोइंग टू से जस्ट लाइक मेरी आपसे रिक्वेस्ट अगेन है कि जो HIV का है 90-70-90 का जो WHO ने दिया है, उसको हमने, आप अच्छा लगे या नहीं लगे, डॉक्टर शारदा जैन, डॉक्टर दिव्या सिंघल, डॉक्टर ज्योति अग्रवाल, डॉक्टर रूबी, सब आपको कोक्स करके आपको करवाएंगे कि ये तो करना ही, वो तो आपको करना ही. दूसरा चीज भी है, मैं सोचती हूँ कि 10-12 लोग भी आपको HIV के लिए कभी पकड़ लेंगे ना, ट्रीटमेंट पार्ट विद डॉक्टर रूबी डज इज ओनली 10%. 90% तो स्किल आपको सीखनी है. What I want to say, 90% स्किल आपको सीखनी है, क्योंकि सब पेशेंट तो रूबी के पास नहीं जाएंगे, आपके पास से होकर रूबी के पास जाएंगे, बट यू विल ऑलवेज रिमेन देयर ग्रेट डॉक्टर. सो विद दिस वर्ड्स आई थिंक 1 महीने के बाद हम लोग मिलेंगे, और जो भी सिंगर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, 1 तारीख को DGF का फंक्शन है जिसमें हम अब्दुल कलाम के अवार्ड्स देंगे. तो जितने भी लोग हैं उनका जो सबसे स्टार वाला गाना है उसको गाना है सोलो. तो कौन है स्टार वाला, अपने तो पता नहीं चलता मैंने कौन सा बढ़िया गाना गाया, दूसरे लोग बताते कि तुम ये गाना अच्छा गाती हो. Am I clear?
Thank you. Yes, ma'am. Thank you very much, everybody. ma'am. Thank you, participants. Thank you. We are very lucky to have Dr. Sharda Jain ma'am, who is उन्होंने बिल्कुल चिंगारी लगाई है और अब हम लोगों को ये मशाल लेके आगे बढ़ना है, HIV को खत्म करना है. हम अभी 30 से 50 पार्टिसिपेंट्स थे, हर एक को आगे बढ़ानी है ये बातें जो मैम ने कही हैं. Thank you so much. See you. Thank you again. very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Namaskar.